previous video, I have explained you the two paragraphs of the story in which I have told you that Abdul Kalam was born in middle class Tamil family and his place of birth was Rameshwaram, okay, in Tamil Nadu. But formerly it was known as Madras state. His father's name was Jainuddin, and he says about his father that he was a very generous person. He was not very rich and he likes to live a very simple life. Whatever is necessity, he taught his children to not waste money in unessential things. And similarly, her mother, whose name was Ashiamma, she also used to help his father, and she was also a great supporter and help to him. She was very generous and kind-hearted, and she used to feed people, and she fed a greater number of people from outside than the number of the people in the family. So we also talked about the physical appearance of APJ Abdul Kalam. He told us through this story that he was a short-heighted with common looks. On contrary, his parents were tall and handsome. Okay, he used to live in Pakka house made up of limestone and brick on the Moss Street in Rameshwaram. Till there we have done. Now let's read further from page number 69, paragraph 3. Okay, let's read. Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. So जब APJ Abdul Kalam 8 years के थे तब Second World War हुई in the year 1939 में. So we can calculate that he was born in the year 1931. तो हम इसी से calculate कर सकते हैं कि वो 1931 में born हुए थे, और जबकि 1939 में जब Second World War हुई तब year था 1939. Let's read further. The next paragraph says, for reasons I have never been able to understand, a sudden demand of tamarind seed होती है, kind of fruit, erupted in the market. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Moss Street. A day's collection would fetch me princely sum of 1 anna. Anna old Indian coin को बोलते हैं, worth about 6 पैसे. ठीक है, princely sum मतलब एक generous amount मिल जाता था, अच्छा खासा amount. So एक चीज़ थी जो अब्दुल कलाम को समझ में नहीं आती थी, वो थी डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स. टैमरिंड सीड्स एक काइंड ऑफ फ्रूट होता है, उसकी सीड्स increased in the market. So APJ used to collect and sell the tamarind seeds to a provision shop located on Moss Street. He would earn a mere sum of 1 anna, which equals to 6 paise. When he addresses it a princely sum, something was very great and valuable. He is being ironic as the amount was very meager. At that time, this 1 anna meant a lot of money to him. So उस टाइम में 1 anna बहुत होता था, वो मनी बहुत ज़्यादा माना जाता था. तो एक चीज़ जो उन्हें नहीं समझ में आती थी वो ये थी कि टैमरिंड सीड्स इंक्रीज़ क्यों हो रही है मार्केट में, उसका डिमांड क्यों इंक्रीज़ हो रहा है. तो वो क्या करते थे, वो सीड्स कलेक्ट करते थे, एक शॉप में बेचते थे, और उससे उनको मिलते थे 1 anna, विच इज़ इक्वल टू 6 पैसे. उन्होंने इसको प्रिंसली सम इसलिए कहा, प्रिंसली सम मतलब काफ़ी अच्छा खासा, ठीक है, अ जेनरस अमाउंट. तो इसका मतलब है कि उस टाइम पे 1 anna बहुत होता था. ओके, लेट्स रीड फर्दर. माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in दिनामणि. तो दिनामणि क्या था, दिनामणि एक तमिल डेली न्यूज़पेपर था, उसका नाम था दिनामणि, DINAMANI. ओके, सो दिस मीन्स दैट अब्दुल कलाम के जो ब्रदर इन लॉ थे जिनका नाम जलालुद्दीन था, वो उन्हें स्टोरीज़ बताते थे जो वर्ल्ड वॉर की जो इस टाइम पे चल रही थी. सो लेटर APJ Abdul Kalam used to read the newspaper Dinamani and used to look the news for the same stories. तो वही stories वो न्यूज़पेपर में भी पढ़ते थे. इस न्यूज़पेपर का नाम था दिनामणि. Okay, the next line says our area being isolated was
completely unaffected by the war. But soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. Isolated मतलब lonely, अकेले हो जाना. Allied forces एक एक्सेस पावर थी, एक अलाइड फोर्सेस थी. तो अलाइड फोर्सेस की आर्मी में थे यूके, यूएसए एंड रशिया ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ठीक है, उनके अगेंस्ट थे जर्मनी, जापान. ठीक है, तो ऐसे लड़ाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी. सो अब ना APJ अब्दुल कलाम पर उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्या इफेक्ट पड़ा, बिकॉज ही वॉज जस्ट 8 years old. उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा था. ठीक है, so this means that रामेश्वरम was a small town far from land. तो रामेश्वरम बहुत ही छोटा सा शहर था जो लैंड से भी काफ़ी दूर था. सो इट वॉज नॉट अफेक्टेड बाय वर्ल्ड वॉर इन द बिगनिंग. तो पहले बिगनिंग में तो वर्ल्ड वॉर से वो इतना इफेक्ट नहीं हुआ. But after some time, India has to join the war and combined with allied forces. तो बट कुछ टाइम के बाद इंडिया को भी वॉर के अंदर घुसना पड़ा और उन्होंने ज्वाइन करी अलाइड फोर्सेस. अलाइड फोर्सेस में कौन कौन था? यूके, यूएसए एंड रशिया. Then a state emergency was declared in the country. और उस टाइम पे स्टेट emergency डिक्लेयर हो गई. अब ड्यूरिंग emergency the president rule is implemented in the country. अब you have must read in civics और history के president rule होता क्या है. president rule जब लग जाता है तो शहर में कर्फ्यू हो जाता है. It is like a curfew in the country. A lot of privileges which are given to people are withdrawn. तो जितनी भी privileges, जितनी भी आपको फ्रीडम दी जाती है एक कॉमन पर्सन को, वो आपसे ले ली जाती है. तो कर्फ्यू मतलब कुछ भी नहीं हो सकता. आप कारोबार भी नहीं कर सकते हो, आप कुछ बेच भी नहीं सकते हो, आप कहीं जा भी नहीं सकते हो. तो सब कुछ बंद हो जाता है. तो दैट इज़ एन एमरजेंसी. ठीक है, तो उस टाइम पे वॉर की वजह से एमरजेंसी लग गई थी. ठीक है, लेट्स रीड फर्दर. द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन फॉर्म ऑफ सस्पेंशन of the train halt at Rameshwaram station. The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanuskodi. Casualty मतलब होता है loss. The first loss came in the form is of the suspension of the train. Suspension means end. ट्रेन ने चलना बंद हो गई थी. ठीक है, ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम. हॉल्ट मतलब स्टॉप, टू स्टॉप. ठीक है, सो द पहला इम्पैक्ट था वर्ल्ड वॉर का जो पड़ा पीपल में ऑफ रामेश्वरम, वो था कैंसिलेशन ऑफ द ट्रेन स्टॉपेज एट रामेश्वरम स्टेशन. तो रामेश्वरम के स्टेशन पे ट्रेन रुकती नहीं थी अब. अर्लियर द ट्रेन विच came from India used to stop at Rameshwaram station and then went further to धनुषकोडी. तो धनुषकोडी एक दूसरे आइलैंड, दूसरे टाउन का नाम होगा. तो पहले ट्रेन जो इंडिया से आती थी वो रामेश्वरम में रुकती थी और फिर वो धनुषकोडी जाती थी. बट अब ट्रेन रुकती ही नहीं थी वहाँ पे क्योंकि इमरजेंसी लग गई थी. बट नाउ द हॉल्ट वॉज कैंसल्ड एंड हॉल्ट मीन स्टॉपेज and the train went from India to Dhanuskodi while without stopping at Rameshwaram. With this, the newspaper bundle which used to come for Rameshwaram was thrown out of the moving train as it reached Rameshwaram road. तो इसी की वजह से जैसे रामेश्वरम रोड पर ट्रेन पहुंचती तो मूविंग ही ट्रेन में वो न्यूज़पेपर्स फेंके जाते थे क्योंकि मोड ऑफ कम्युनिकेशन बंद कर दिया गया था एक तरीके से. तो वो न्यूज़पेपर्स कैसे पहुंचाए जाए, तो ट्रेन चलती चलती जाती थी और उसी में से कोई बंडल फेंकता था जैसे ही रामेश्वरम की रोड आती थी. ओके, लेट्स रीड फर्दर. That forced my cousin Samusuddin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot. Fill the slot means fit into the place easily. वो काम उसके लिए सही था. मतलब Samusuddin helped me earn my first wages. Okay, so what happened? APJ अब्दुल कलाम कज़न थे जिनका नाम शमसुद्दीन था. SAMSUDDIN. He used to distribute the newspapers in रामेश्वरम. तो उनका काम क्या था?
वो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे रामेश्वरम में. बट एज द ट्रेन स्टॉपेज वॉज कैंसल्ड एंड द न्यूज़पेपर बंडल वॉज थ्रोन आउट ऑफ द मूविंग कार, ही नीडेड समवन टू हेल्प हिम टू कैच इट. तो उसको कुछ चाहिए था जो उसकी हेल्प कर सके उस बंडल को कैच करने में. सो APJ Abdul Kalam helped his cousin Samsuddin by catching the bundle and distributing the newspapers. और in return Samsuddin ने उसे फर्स्ट सैलरी दी APJ अब्दुल कलाम को. सो APJ अब्दुल कलाम की फर्स्ट अर्निंग जो थी वो थी कैसे थी, न्यूज़पेपर्स बेचकर. तो उन्होंने अपने कज़न की हेल्प करी थी और उस हेल्प से ही गॉट हिज फर्स्ट वेज. वेज मीन्स अ सैलरी. ठीक है. द नेक्स्ट लाइन सेज half a century later I can feel the surge of pride in earning my own money for the first time. प्राइड मतलब सडन इंक्रीज इन द फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन. तो अब अंदर से ही उनकी जो सेटिस्फैक्शन थी अपने लिए कि येस आई कैन ऑल्सो डू समथिंग, आई कैन ऑल्सो अचीव समथिंग. तो अपने जैसे उन्होंने अपना पहली सैलरी खुद अर्न करी, उनका प्राइड बढ़ गया, उनका कॉन्फिडेंस अपने को लेके बढ़ गया. एंड हाफ अ सेंचुरी लेटर मीन्स अ पीरियड ऑफ 50 years. तो ये चीज़ कब हुई, 50 years के बाद हुई. सो दिस इंसिडेंट हैपन 50 years ago. तो ये अभी से 50 years ago की बात हो रही है ये. इवन नाउ दैट इज़ व्हेन ही रोट द बुक. तो ये मतलब कब हुआ, जब उन्होंने बुक रोट करी थी, बुक लिखी थी. ही कुड फील सेटिस्फाइड एंड प्राउड ऑफ हिमसेल्फ. APJ says that whenever someone earns his own money with his hard work, he feels in the same way as he did. तो उनका मतलब है कि उन्होंने जब अपना पहली अर्निंग कमाई, उन्होंने अपना पैसा कमाया अपने हार्ड वर्क से, तो वो उनको एक सेंस ऑफ प्राइड, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन थी जो सबके अंदर आती है जब वो अपने पहला कुछ काम करते हैं, अपनी पहली सैलरी कमाते हैं. ओके, लेट्स कम टू द 4th paragraph. ओके. Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. I inherited honesty and self-discipline. Okay, figures of authority का मतलब होता है a person who had authority over another person, a person who has the power to give orders or to make decisions. तो जिसके पास डिसीजन लेने की पावर होती है, फिर किसी को असिस्ट करने की पावर होती है, दैट इज़ द फिगर ऑफ अथॉरिटी. I inherited honestly and self-discipline from my father. From my mother, I inherited faith and goodness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sister. Inherited means a characteristic or a quality which you get from your parents. तो जो पेरेंट्स के अंदर क्वालिटी है वही चीज़ जब आपको मिलती है नेचुरली, उसको हम इनहेरिटेड बोलते हैं. ठीक है. सोशियो इकोनॉमिक मीन्स इन टर्म्स ऑफ मनी. ठीक है. सोशियो इकोनॉमिक वर्ड यहाँ पे मनी के टर्म्स में यूज़ किया गया है. Okay, so this means that for a child, the figure of authority is his parents. तो एक child के लिए एक figure of authority जो आपको assist कर सकते हैं, guide कर सकते हैं, जो आपको चीज़ें सिखा सकते हैं, वो उनके parents होते हैं. And the next figure of authority can be teacher, a person who has authority over the child. और जो next authority of figure हो सकते हैं वो हो सकते हैं उनके teacher, जिन्होंने उनको कुछ सिखाया हो as a child. APJ is saying that whenever a child is born, he has some qualities which acquire from the elders in his family. तो जब एक child born होता है तो उसके अंदर कुछ ऐसी qualities होती हैं जो उनसे अपने family members से मिलती हैं, वो inherit करता है naturally. These depends upon the social status of the family and the environment at home. तो ये किस पे depend करता है? Social status means money, जो आपकी financial status क्या है, आपकी सोसाइटी कैसी है और आपका इन्वायरमेंट कैसा है घर में, इधर उधर लोग क्या करते हैं. फ्रॉम हिज फादर ही इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन. तो अपने फादर से उन्होंने क्या लिया था, कैसी क्वालिटी ली थी? ऑनेस्टी. ऑनेस्टी मतलब जो काम करना है सच्चाई से करना है. ठीक है. सेल्फ डिसिप्लिन, चाहे हमें कोई डिसिप्लिन में रखे, हमें कोई असिस्ट करे चाहे ना करे, खुद के अंदर खुद का कंट्रोल है एज अ डिसिप्लिन पर्सन, वो होना बहुत ज़रूरी है.
एंड फ्रॉम हिज मदर ही इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस। तो उन्होंने अपनी मदर से क्या इनहेरिट किया? फेथ इन गुडनेस, मतलब अच्छाई पे फेथ रखना, एंड डीप काइंडनेस, दूसरों की हेल्प करना, जेनरस होना, काइंड पर्सन होना, एंड हिज सिबलिंग ऑल्सो इनहेरिटेड दीज क्वालिटीज़ फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो सिर्फ वही नहीं थे जिन्होंने ये चीज़ इनहेरिट करी थी, उनके सिबलिंग्स भी थे, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट ऐसा था, इन्वायरमेंट सेम था। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। I had 3 close friends in my childhood: Ramanatha, Shastri, Aravindan, and Siva Prakasan. All these boys were from Orthodox Hindu Brahmin family. Orthodox मतलब strict, जो अपने रिलीजन को स्ट्रिक्टली मानते हैं, ठीक है, वो ऑर्थोडॉक्स होते हैं। ऑर्थोडॉक्स इन हिंदी इज नोन एज कट्टर। ठीक है, तो दिस मीन्स APJ हैड 3 बेस्ट फ्रेंड्स, उनके 3 बेस्ट फ्रेंड्स थे ड्यूरिंग चाइल्डहुड। उनका नाम था रामानंदा शास्त्री, रामानंदा शास्त्री इज वन नेम, Aravindan, and third was Siva Prakasan. All of them belonged to very strict Hindu Brahmin family and were adherent followers of their religion. मतलब अपने रिलीजन को बहुत ही सच्चाई से फॉलो करते थे, वो किसी को नहीं फॉलो करते थे, बस अपने रिलीजन को फॉलो करते थे। ओके, लेट्स रीड फर्दर। As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religion differences and upbringing. In fact, Ramananda Shastri was the son of Pakshi Lakshmana Shastri, the highest priest of the Rameshwaram temple. Later, he took over the priesthood of Rameshwaram temple from his father. Aravindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrimage. Pilgrimage मतलब तीर्थ स्थल, ठीक है, होली प्लेस को pilgrimage कहते हैं। And Shiva Prakasan became a catering contractor for the southern railways. तो वो जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे वो अपने काम में लग गए। तो APJ अब्दुल कलाम एक मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करते थे, पर ये सब चीज़ें ड्यूरिंग चाइल्डहुड उन्होंने कभी कंसिडर ही नहीं करी, बिकॉज चिल्ड्रन वर सो क्लोज टू ईच अदर, दे नेवर फेल्ट दे बिलोंग इन डिफरेंट रिलीजन्स। रिलीजन वॉज नॉट अ बैरियर इन द फ्रेंडशिप। तो वो रिलीजन को लेकर उनका एक कोई बैरियर नहीं था फ्रेंडशिप में, वो लोग सिर्फ फ्रेंड्स थे, वो लोग अच्छे फ्रेंड्स थे, उन्होंने कभी भी रिलीजन कंसिडर किया ही नहीं। देयर इज़ अ वेरी फेमस टेम्पल इन रामेश्वरम, आपने बहुत सुना होगा रामेश्वरम टेम्पल के बारे में, एक तीर्थ स्थल है वो, ठीक है, अभी भी आप सुनते हो। तो उस टाइम पे भी एक रामेश्वरम टेम्पल हुआ करता था। तो APJ's बेस्ट फ्रेंड रामानंदा शास्त्री सन था ऑफ पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, जो प्रीस्ट थे उस टेम्पल के, मतलब जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट के पंडित थे उस टेम्पल के, उनका सन था, उनके बेस्ट फ्रेंड। देन व्हेन दीज 3 फ्रेंड्स ग्रू अप, जब वो लोग बड़े हो गए तो रामानंदा शास्त्री ने अपने प्रीस्टहुड ले लिया, अपने फादर की प्लेस ले ली, और वो अब बड़े होने के बाद रामेश्वरम टेम्पल के प्रीस्ट थे, ठीक है। अरविंदन ने बिजनेस स्टार्ट किया ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द पिलिग्रिम्स कौन होते हैं? जो तीर्थ करने आते हैं, तीर्थ यात्रा पे जो आते हैं उनको पिलिग्रिम्स कहते हैं, PLIGRIMS। तो उसने स्टार्ट क्या कर दिया कि जहाँ पे जो तीर्थ स्थल में लोग जो ट्रैवल करके आते हैं उसका बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और शिवा प्रकाशन, ही बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवे एंड ही वॉज इन चार्ज ऑफ कैटरिंग फॉर द रेलवेज। तो रेलवेज में जो खाना होता था उसके कॉन्ट्रैक्टर बन गया वो, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ सेज ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता रामा कल्याणम ceremony, so this ceremony is known as कल्याणोत्सव, ठीक है। इट मीन्स मैरिज फेस्टिवल, तो इसका मतलब क्या है? मैरिज फेस्टिवल, ठीक है। इन
साउथ इंडिया मैरिज इज़ ऑल्सो नोन एज कल्याणम. आपने सुना होगा जो साउथ के लोग होते हैं वो मैरिज को कल्याणम बोलते हैं. सो लॉर्ड राम एंड सीता मैरिज इज़ कॉल्ड सीता रामा कल्याणम सेरेमनी. इट इज़ द सेरेमनी ऑफ डिपिक्शन ऑफ द मैरिज बिटवीन सीता एंड राम. तो ये लोग एक्ट करते थे उस टाइम पे, एक राम बनते थे, एक सीता बनते थे और दोनों की शादी होती थी. तो ऐसे लोग डिपिक्ट करते थे वो एक्ट पूरा, और इस सेरेमनी को बोलते थे रामा कल्याणम सेरेमनी. कल्याणम मीन्स शादी. राम जी को बोल रहे हैं यहाँ पर, और राम जी और सीता जी की शादी की जो पूरी एक्ट होता था उस सेरेमनी को रामा कल्याणम सेरेमनी बोला जाता है. लेट्स रीड फॉलो. Our family used to arrange boats with a special platform for carriage idols of the Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Ramatirtha, which was near our house. So, क्या कह रहे हैं वो इस पैराग्राफ में? That whenever the Shri Sita Rama Kalyanam ceremony used to take place, APJ's family also took part in it. तो जब ये सेरेमनी होती थी तो APJ अब्दुल कलाम की जो पूरी फैमिली थी वो भी पार्ट लेती थी. They used to arrange the boats for it. तो वो क्या करते थे, कैसे पार्ट लेते थे? वो boats arrange करते थे. They used to make a special platform on the boats on which the statue of Ram and Sita were placed and transported from the temple to the marriage site, which was in the middle of the pond named Ramatirtha. तो pond के बीच में एक साइट थी जिसका नाम था रामातीर्था. वो क्या करते थे, वो बोट्स में एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते थे और उसके ऊपर स्टैचूज़ रखे जाते थे राम जी और सीता जी के, और वो ट्रांसपोर्ट करते थे मैरिज साइट तक. ठीक है. द पॉन्ड वॉज नियर APJ's house. When he was growing up, he never thought that there were any differences between Hindu and Muslims as they participated in the Hindu festival wholeheartedly. तो उन्हें एज अ चाइल्ड उन्हें कभी नहीं लगा था कि कोई डिफरेंसेस आएंगे हिंदू और मुस्लिम्स में, क्योंकि वो हिंदू फेस्टिवल्स में भी बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे जैसे मुस्लिम फेस्टिवल्स में करते थे. तो उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा था कि हिंदू मुस्लिम्स अलग हो जाएंगे, उनकी यूनिट, उन्हें हमेशा विश्वास था कि ये यूनिटी ऐसी ही बनी रहेगी. ओके. So I'm just ending this video here. I want you to go through whatever I have explained. If you have any doubt, you can ask. I will be giving you some worksheets. But before that, just read the chapter. Okay. Thank you.